Good evening, ma'am. Ma'am, good morning. Good evening. कमाल है सर, रॉन्ग साइड से आप आ रहे हो, मेरे को कागज सिखाने का। ओए, देख भी रहे हो, देख के चलो इन्हें खाने, Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. दूसरे की इज्जत करते हैं। हाँ? उम्मीद तो है। ठीक है। Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Okay, बच्चे don't write on screen. Let's start the class. It's A J J. Okay, ma'am.
Still you are writing. अभी भी लिख रहे हो आप. आपका नाम आ जाता है इस पे. Don't write Arsh. Okay, we have done preposition in our previous class. आप अपनी वीडियो स्टार्ट करो. ये क्या नाम है? AJJUB अज्जू भाई. स्टार्ट योर वीडियो. जल्दी मुझे बात करनी है आपसे. यस अज्जू. Everyone turn on your video. सभी वीडियो ऑन करें. Then I will start the class. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा. मैम आपकी आवाज बिल्कुल स्लो स्लो आ रही है. Okay, is it clear now? मैम नहीं, अभी भी स्लो आ Yes, रही है. ma'am. अब क्लियर है? मैम साउंड क्लियर है. Okay. In previous class we have done preposition. यस मैम. ठीक है. Did that class helped you? आपकी हेल्प हुई उस क्लास से? आपको टॉपिक समझ में आया? preposition क्या होती है and how to use it in sentences? Yes, ma'am. Okay. यस मैम. Now see. यस मैम. यस. Now onwards we are going यस to मैम. start our English grammar. Okay, parts of speech. And these 8 topics we are going to understand first. देखो, you may be facing problem in tenses, voice, ठीक है, direct and indirect speech, उसमें आपका problem होती होगी. तो for that we need to understand these 8 parts. This is basic of our English grammar. We will complete this first, then we will move on these tenses and all. Okay, I will try to speed up with our lectures. थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा फास्ट करवाऊंगी so that we can cover whole grammar part till our March. ठीक है, till your exams are supposed to be there. Now 8 part of speech are there. This is noun, adverb, interjection, conjunction, preposition, adjectives, pronoun and verb. First of all, let me make you understand. See, noun, ठीक है. आपको ये टॉपिक्स है ना लर्न होने चाहिए. 8 part of speech should be on your fingertips. And this is the way I understand. It will help you. Okay. देखो, noun, आप you know it very well what is a noun. And pronoun, that pronoun is used in place of noun. जब हम noun use नहीं करते तो instead of that we use pronoun. Adjective क्या करता है? Adjective tells quality of these. इन दोनों की क्या करता है? Quality बताता है. ठीक है. Let's suppose we are talking about a cat. हम एक cat के बारे में कर रहे हैं, that is बात कर रहे हैं, that is noun. लेकिन cat कैसी है? मोटी है,
ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, ठीक है, दैट बिग व्हाइट, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। सो लर्न इट दिस वे, नाउन प्रोनाउन और इन दोनों की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। क्लियर? रिपीट आफ्टर मी, नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। Noun, pronoun, adjective. Why I am getting only one voice? What about others? Okay. इस चीज को आप इससे let's take it as an one group. ये one group है, ठीक है। verb and adverb. adverb देखो, adverb verb में adverb, ठीक है। Understand it this way. जब हम verb में कुछ add कर देते हैं, it becomes adverb. Is it clear? When we add something to verb, it becomes Yes. an adverb. ठीक है। verb क्या होता है, action होता है। Let's suppose Yes, ma'am. the boy is walking. लड़का क्या कर रहा है, चल रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। And लड़का चल रहा है, जा रहा है मीन्स एक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्शन क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन वो जा कैसे रहा है, ठीक है। वो दैट इज एडवर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करे, वर्ब को एक्सप्लेन करे, ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है, वो धीरे काम हो रहा है, वो बहुत फास्ट काम हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज एडवर्ब। जो एक्शन हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, तो उसको बताता है, दैट इज एडवर्ब। Clear? Verb and adverb. And three. Yes, ma'am. And three Yes, parts. ma'am. And three parts. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tion लगता है, TIUN, TIUN, TIUN. That is preposition, conjunction, Yes, ma'am. interjection. इन तीनों को you make it one group. ठीक है। अब इनको तीनों को इकट्ठा लर्न करो। Verb, adverb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. If you will learn it this way ना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। And you know, you need to understand topics also. आपको सारे topics पता होने चाहिए, what we are going to cover in our lectures, so that you can find out the difference. अगर हम preposition कर रहे हैं, तो preposition को आप clear हो कि आपको preposition क्या होती है, conjunction क्या होती है, noun क्या होता है, it should be very clear to you. आपको sentences में ये identify करने हैं कि verb है, ये word verb है या फिर adverb है, ठीक है। Now you will be learning English on an advanced level, not on the basic जो आप 5th class तक करते हैं, simple. So try to understand your topics. आपको topics अपने tips पे होने चाहिए. So learn it this way: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Clear? Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt, beta? Yes, ma'am. Yes, ask me. Yes, what's the doubt? मैम इंटरजेक्शन क्या होता है? अच्छा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मेक इट वन ग्रुप, ठीक है। ये इनकी क्वालिटीज बताएगा, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन क्वालिटी बताएगा, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताएगा। यस मैम एडवर्ब क्या होता है? बच्चे, नेक्स्ट पेज पे मैं यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बीच में एक्सप्लेन कर दूंगी ना, तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। अभी आप इतना लर्न करो कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव इनकी क्वालिटी बताता है, ठीक है, और एडवर्ब वर्ब की, which explains, which describe verb, preposition, conjunction, interjection. I will explain it next slide. Now check this. Noun is clear to you ना, name of the person, place or thing. Noun क्या होता है, ठीक है। Noun, these words: cat, dog, garden, work, music, town, Manila, teacher, Bob, name of the person, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, that is noun,
ठीक है, इट मे बी अ पर्सन, हम किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट सम पर्सन, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो दीज आर नाउन। द सन शाइन्स, हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, कौन शाइन करता है, द सन, सूरज शाइन करता है, तो द सन इज आर नाउन। अन्ना गोज टू स्कूल, अन्ना जाती है, कहाँ जाती है, प्लेस है ना, दिस इज प्लेस, सो अन्ना इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, स्कूल इज अ नेम, प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, सो दीज आर नाउन्स। ऐसे सेंटेंसेस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये टू क्या है, गोज क्या है, स्कूल क्या है, इसमें वर्ब की कैसी फॉर्म चेंज हुई है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। प्रोनाउन, व्हेन वी यूज, when noun is repeated, जब noun repeat होता रहता है बार बार, let's suppose हम एक, we are talking about some person and we are talking about John, or again and again we are taking name this John, so it may be very awkward कि बार बार again and again we are taking same name, instead of that we use he, ठीक है, and these words are pronoun, हम इन words को use करते हैं, ठीक है। बुक्स है, बुक्स है, अगर आपको नहीं बुक्स का नाम नहीं लेना, बोल पॉइंट आउट कर रहे हो कि दैट वो बुक, so that is a pronoun instead of using the word book. John is hungry, John hungry है, अगर हम ये सेंटेंस दोबारा से रिपीट करें तो John wants to eat, John wants to sleep, so this way John will come again and again in our sentences, so we can use he pronoun. Okay, now हमने क्या किया था, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव था ना आपका ग्रुप। मैम ये Yes. जो आपने यहाँ पर लाइन्स बनाई हुई हैं, ये वाली, ये आपने क्यों बनाई है? ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जॉन की जगह हमने ही यूज किया है, हमने अगर जॉन इज हंग्री, जॉन वांट्स टू ईट, राइट, ये सेंटेंस है ना। यस मैम। मतलब फिर जो अगला है एंड के यार, ओके मैम। ये शो कर रहा है कि हमने जॉन की जगह ही यूज किया है, इट इज शोइंग दिस। ओके, ओके मैम। हमारा ग्रुप था नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव क्या करेगा, इनकी क्वालिटी बताएगा, देखो हाउ डिस्क्राइब्स नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। एंग्री, देखो डॉग, ब्राउन डॉग, डॉग क्या है, डॉग इज एन नाउन, नेम ऑफ द एनिमल, राइट, लेकिन कैसा डॉग है, ब्राउन डॉग है, ठीक है। कैट, बिल्ली, देखो ये एरो अब ये शो कर रहा है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, डॉग की क्वालिटी बता रहा है, डॉग इज ए नाउन, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्राइब नाउन, तो डॉग की क्वालिटी बता रहा है, डॉग कैसा है, डॉग ब्राउन है। अगर हम डॉग की, सिर्फ डॉग की बात करें तो हमें नहीं पता चलेगा, उसके बारे में हमें और ज्यादा नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा है नाउन को, ये सिर्फ नाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बताएगा, ठीक है। कैट, बिल्ली, कैट इज अ नाउन, लेकिन कैट कैसी है, फैट कैट, सो फैट इज अ एडजेक्टिव, कि क्या कर रहा है, फैट, फैट बता रहा है कि बिल्ली है, लेकिन कैसी बिल्ली है, मोटी बिल्ली है। सेम गार्डन, गार्डन इज अ नाउन, ठीक है, नेम ऑफ द प्लेस, लेकिन गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल गार्डन है। अगर बिग गार्डन, तो बिग इज एडजेक्टिव, ये बिग बता रहा है कि हमें गार्डन कैसा है, ये नाउन कैसा है, हमें गार्डन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है, बिग से मिल रही है ना। क्लियर, एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Now- No, ma'am. Now verb and adverb, देखो वर्ब क्या होता है, एक्शन, जो नाउन है ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, प्रोनाउन है ये क्या क्या काम कर रहा है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में, हमें किससे पता चलता है, वर्ब से पता चलता है, शोज एक्शन और बीइंग, वहां पर होना या फिर कोई एक्शन होना, we get this information through verb, ठीक है। एक्शन वर्ड्स क्या होता है, रन, दौड़ना, गो, जाना, हैव, होना, इनवाइट, किसी को बुलाना, लाफ्ड, हंसना,
ठीक है, दीज आर एक्शन। देखो द डॉग एंड कैट, एक डॉग है एंड कैट है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आर रनिंग, क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, रनिंग। दोनों क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे, रनिंग। लेकिन एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, ऐड टू वर्ब, कुछ वर्ब में ऐड करता है, ठीक है। अब रनिंग कर रहे हैं लेकिन रन क्विकली, जल्दी से दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें एडवर्ब से किसकी क्वालिटी पता चली, वर्ब की क्वालिटी पता चली कि जो एक्शन हो रहा है, जो रन एक्शन हो रहा है, रन इज अ वर्ब ना। देखो रन एक वर्ब है ना, यहाँ पे देखो रन एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन जो नाउन है वो कैसे रन कर रहा है, क्विकली, जल्दी से रन कर रहा है, क्विकली रन कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किससे मिली, क्विकली से मिली। तो रन इज अ वर्ब और क्विकली इज एन एडवर्ब। क्लियर। ईट, खाना, यस मैम। वेरी Yes, ma'am. बहुत धीरे से खाना, ठीक है। सो adverb always add something to verb. Now meanwhile we are leaving articles. Yes, आज ma'am. we are not covering articles. अभी मैं आपको preposition, conjunction और interjection explain करती हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा। preposition is clear to you ना। यस मैम। Yes, ma'am. मैम yes, जो एडवर्ब में एग्जांपल है, runs quickly, eats very slowly, slowly एडवर्ब है। slowly। ओके मैम। देखो preposition, conjunction, interjection. preposition is clear, जो which tell position of a noun, ठीक है। अब जैसे आप ये चीजें देखते हो ना, you get confused when we will cover these topics ना, it will be very easy for you. Now conjunction, what conjunction does, conjunction is used in this sentence, ठीक है। देखो how, the cat is running, the dog is running, the cat is running and the dog is running, ठीक है। ये दो sentences है, अगर आपको इनको ज्वाइन करना है तो आप इसको कैसे बोलेंगे, how you will join these sentences, anyone? Ma'am. And Ma'am, with the the conjunction. cat and the dog are running. Yes, the cat and dog are running, ठीक है। कंजक्शन सिर्फ यही करता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। ओनली दिस इज वर्क ऑफ एन कंजक्शन। कनेक्ट वर्ड, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है बेटा आर्टिकल्स है ना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आर्टिकल्स Okay, इज ma'am. यूज्ड बिफोर नाउन। अभी मैं आपको ना आज ओनली ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. We will take this topic one by one. अभी आर्टिकल्स मैं आपको इसलिए नहीं कर रही, I just want to make you understand these 8 things, ठीक है। We will cover article after Okay, noun. ma'am. Noun के बाद हम article topic cover करेंगे, then I will explain you. अभी इसको छोड़ दो। Okay, ma'am. Conjunction only does this, सिर्फ ये करता है, conjunction दो sentences को join करता है। जब भी हमें सिमिलर सेंटेंसेस हैं, अगर कई बार ये लगता है कि दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करके बोल सकते हैं, तो वी यूज कंजक्शन। इज कंजक्शन क्लियर टू यू? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am.
ये जो बेटा फेसेस क्लॉजेस है ना, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी शॉर्ट टर्म्स में यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस. सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस. अभी आपके लिए बस ये समझो कि कंजक्शन ज्वाइन टू लाइन्स, टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दैट इज कंजक्शन. आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था. आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया. तो इसको किस चीज से, दो सेंटेंसेस हैं, इनको किससे जोड़ दिया? सो से. मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया. क्लियर? preposition Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. Preposition tells you position. Conjunction joins two sentences. Interjection. Interjection expresses your strong feeling. आपकी strong feelings को express करता है. देखो, जब आप कभी कभी मैच हार जाते हो, जीत जाते हो, या फिर आप कभी किसी से पूछते हो खेलने चलना है, तो आपको कभी को लेट्स सपोज आपके फ्रेंड ने आंसर किया तो दैट इज आंसर ना. हाँ जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दैट आंसर इन सेंटेंस? क्या सेंटेंस में या वर्ड्स में आंसर किया उसने? Ma'am, No, no. ma'am. No, ma'am. So he is using interjection. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. इंटरजेक्शन आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. ठीक है. लेट्स सपोज these sounds, these word, aha, gosh, great. देखो what इस साइन को हम क्या बोलते हैं? What this is called? Ma'am, exclamation. Yes, Ma'am, exclamation exclamation. mark. This is Ma'am, exclamation. yes बेटा, exclamation mark. ठीक है. इंटरजेक्शन जो फीलिंग्स होती है उसके बाद भी यूज exclamation mark. And these word, aha, gosh, great, hey, hi, hooray, oh, oops, pew, oh, ouch, hi, will. So these expresses feelings. ये आपकी फीलिंग्स को बताते हैं. ठीक है. यू आंसर दिस वे ऑल्सो. आप अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो. आई मीन दैट टेल्स यू, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड. आप यू कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन, हाउ अदर पर्सन इज फीलिंग. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, यू आर नॉट शोइंग योर एंगर, आप अपना गुस्सा नहीं दिखा रहे, लेकिन बट यू आर शोइंग इट थ्रू योर एक्सप्रेशंस, थ्रू योर साउंड वर्ड्स. सो दैट इज इंटरजेक्शन, जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. I spilled the milk. Oops, I spilled the milk. ठीक है. Oops, ये क्या कर रहा है? It is showing. देखो, दूध गिर गया. एक सिंपल सेंटेंस. But when we use oops, I spilled the milk. दूध गिर गया. ठीक है. So this oops is showing my expression. Otherwise आपको पता चलेगा how I am feeling. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. So this is interjection. Is there any doubt in these 8 parts of speech? No, ma'am. No, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, any question you want to ask? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. Who will explain me all these? Yes, Usha. Okay, revise this group. Noun, pronoun, adjective. Yes, everyone. Repeat. Noun. Noun, pronoun, adjective. Noun. Adjective. Noun. Verb. Adverb. Preposition. Conjunction. Interjection. Verb, adverb, Take screenshot of this and write it this way in your notebook. Okay. Okay, ma'am. Now, क्या करना है नोटबुक पे लिखना क्या है?
ये वाला पेज बेटा, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज टू लर्न इट लेटर सारा ऑन। लिखना है। नहीं नहीं, सारा नहीं, पहले वाला ओनली दिस पेज। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब आपको ये क्लियर है? अगर मैं आपको ये पेज ना दिखाऊं और only this page is visible to you, so are you able to understand adjective क्या होता है, adverb क्या होता है? ये क्लियर हो गया आपको? यस यस मैम मैम। यस मैम Okay. See, in our English grammar ना so many topics are there, लेकिन ये 8 part of speech जब आप करेंगे ना, mostly इसमें से देखो part of speech, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, ये इतना आपका 1 part है, ठीक है? Words and sentences, we will start with word and sentences. Thereafter tenses, number, phases क्या होते हैं, फिर models आएंगे. So this is your advanced part, ठीक है? For that you need to understand these things. Clear? आप इसमें कंफ्यूजन मत हो ना. जितना भी आज हमने किया है ना, जो पहले हम इस पार्ट को समझेंगे, सो इट विल बिकम इजी फॉर यू. आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी. प्रीफिक्स हमने किए थे ना, प्रीफिक्स. यस मैम Have we done prefix in your class? No, we have not done prefix. Okay, prefix are very easy. देखो ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी, पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? तो आप कंफ्यूजन में मत रहना, पहले हम ये चीजें क्लियर करेंगे, thereafter we will proceed to this, तब हम इन चीजों पे जाएंगे. क्लियर? यस मैम। यस मैम यस Okay, today I'm going to tell you बहुत थोड़ा सा, ठीक है, about nouns. देखो, प्रॉपर नाउन, जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, जब हम प्रॉपर किसी का नाम लेते हैं ना, हमें पता है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज प्रॉपर नाउन. ओके, व्हाट प्रॉपर नाउन इज, जब हम प्रॉपरली किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर फिक्स्ड, हमें पता है. हम अगर गर्ल के बारे में बात करें तो विच गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज प्रॉपर नाउन. अगर हम पर्टिकुलर किसी जगह का नाम की बात करें, आप बोल रहे हो कि एक जगह है बहुत सुंदर है, तो आई डोंट नो आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हो. लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट की जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें, तो हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो द प्लेस ना, तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं. सो दैट इज प्रॉपर नाउन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, अब बुक्स के बारे में बात करें तो बुक्स तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश ग्रामर बुक के बारे में बात करें तो दैट इज प्रॉपर नाउन. सेम वे विद एनिमल, जब आप एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो let's suppose you are saying ki animals are very god gift to the human beings, ठीक है, they make a different varieties of the species. So animal कोई भी हो सकता है, it may be an elephant and lion or कुछ भी, but when we are talking about particularly किसी animal के बारे में बात करें, like you are talking about dog, उस dog का कोई नाम है, ठीक है, आपके घर में कोई डॉग है, उसका डॉग का कोई नाम है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, इसमें हमें फिक्स होता है कि हम उसका पर्टिकुलर कोई नाम लेते हैं, जो हम नाम किसी का रखते हैं ना, वो उस नाम से जब हम बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन. इज दिस क्लियर? यस मैम यस मैम यस मैम. एंड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? लेट्स सपोज आपकी क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है, सबका अपना अपना नाम है, सो दैट इज प्रॉपर नेम. लेकिन व्हेन वी कलेक्ट दैट, जब हम उनको ग्रुप बना देते हैं, तो व्हाट इज दैट? कलेक्टिव नाउन. जब हम प्रॉपर नाउन को ग्रुपिंग कर देते हैं ना, तो दैट इज प्रॉपर नाउन. लेकिन उस प्रॉपर नाउन, उस ग्रुप का भी तो कोई नाम होना चाहिए ना.
लेट्स सपोज एलिफेंट्स का ग्रुप है, अगर दूर से कोई एलिफेंट का ग्रुप आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि एक हाथी, दो हाथी, चार हाथी ऐसे आ रहे हैं, या फिर अगर उन एलिफेंट्स के भी आपने सबके नाम 15-17 एलिफेंट्स आर देयर, आपने सबका नाम दे रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज प्रॉपर नाउन। लेकिन जब वो सभी अलग अलग डिफरेंट नेम्स के ग्रुप बनाकर आ रहे हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, उनका नाम थोड़ी लोगे, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ओके ओके मैम। ओके मैम। देखो प्रॉपर नाउन का जब हम ग्रुप बना देते हैं ना, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट कर लिया हमने, प्रॉपर नाउन्स को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये फिशेज हैं, इस फिश को आपने A B C D ऐसे करके नाम, हर फिश का नाम दिया हुआ है, लेकिन जब ये इकट्ठी हो जाएंगी तो आप इनको क्या बोलेंगे, ठीक है, आपको इन सभी के बारे में बात करनी, तो यू विल से अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, हमने इसको इस ग्रुप को नाम दे दिया स्कूल ऑफ फिश। सो दिस वे कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जिससे हमें चीज का जेंडर नहीं पता चलता, whether that is a female or male. An abstract noun that shows your feelings, जो आपकी feelings होती है। Let's suppose आप बात कर रहे हो, you are talking about anger, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है and you are talking about that. So the things which we cannot touch, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, जो हम feel करते हैं, ठीक है, that is also a noun and that is abstract noun. So there are many types of noun we will cover in our next class with examples, or we will prepositions है ना, I have taken you just 1 day or 2 day classes because I want confidence in you, मैं आपके अंदर confidence चाहती थी। In next class we will cover these things, ठीक है, and with practice sessions also, so don't think that I mean if you have any doubt na, always ask on spot, आपको डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, and make your doubts clear within classroom। आपका यहाँ पे clear हो जाएगा तो आपको you don't need to go through for many things, confusions नहीं होंगे, it will help you later on when you will be doing these classes, ठीक है। अब जब noun करेंगे, जैसे आपने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न किए हैं, आपको पता देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न टाइप ऑफ नाउन, कौन से नाउन होते हैं, और आपको माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे होता है, बिकॉज संदीप, बिकॉज जब काउंटेबल नाउन होगा तो हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, अनकाउंटेबल होगा तो हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, तो कंफ्यूजन शुड नॉट बी देयर। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। So Yes, first of all, ma'am. today your homework is learn 8 part of speech, make it clear, ठीक है? Okay, bye for now. Ma'am. Yes, बच्चे? Repeat again, please. Yes, your voice is not clear. Ma'am, concrete noun समझा दो. Ma'am, concrete noun. Okay. Concrete noun is of 2 parts, common and proper. Proper is clear to you? Yes, Yes. ma'am. देखो कॉमन नाउन क्या होते हैं, जैसे कार है, डॉग है, ठीक है, रिचर्ड, लंदन, ये कार एंड डॉग क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन जब हम कार का पर्टिकुलर कोई नाम दे देते हैं, जैसे महिंद्रा कार, और if you are giving proper name to the car, किसी कंपनी का नाम